Hi. Good morning, students. Today Good morning, ma'am. today I again want to explain the chapters 11, that is electric current and circuit. Yesterday I had explained about electric current and circuit. Sally Tiwari, you are listening my sound? Yes, ma'am. Okay. The students are very less. There are only 44 students, 43. Okay, children. So yesterday I had explained about the electric bulb. What is electric bulb? First, I want to explain it again. Electric bulb, LED bulb, CFL bulb, and then electric current and electric circuit. Within 2 or 3 minutes, I want to say about electric bulb. What is electric bulb? Yesterday I had explained, but मैं आज थोड़ा सा उसके बारे में बता देती हूँ कि जो बच्चे कल नहीं थे क्लास में उनको भी समझ में आ जाए. Electric bulb, it is made up of glass. Its base is metals, and positive and negative terminal of the electric bulb are present in the metallic base of the electric bulb. Inside the electric bulb, a filament-like structure is present. Inside the electric bulb, a filament-like structure is present, and it is made up of a special kind of wire. It is called as tungsten wire. Okay, it is called as tungsten wire because this wire has some special property. Okay, this wire has some special property. That's why we are not using silver wire, platinum wire, or gold wire. It has some special property. So this tungsten wire has a high melting point and high melting point, low vapor pressure, and high tensile strength. अब पूछोगे कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? जिस पॉइंट पे कोई सब्सटेंस मेल्ट होना शुरू होता है, that point is called as melting point. In case of tungsten wire, it has high melting point and हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब ये ज्यादा मजबूत होता है, तुरंत ये टूटता नहीं है. हाँ, स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस. दैट्स व्हाई वी यूज टंगस्टन वायर एज द फिलामेंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक बल्ब. पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, ऐसा अरेंजमेंट होता है उसके अंदर कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल आपस में मिले नहीं. इस प्रकार का अरेंजमेंट इट इज मेड इनसाइड द बेस ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब. Then come on about LED bulb and CFL bulb. LED bulb, today in our day-to-day life we use LED bulb because LED bulb is more durable and it consumes very less power and provides a large amount of light. And LED bulb is the main benefit of LED bulb is it is more eco-friendly, means it creates very less pollution to the environment. But yes, but CFL bulb, it is also durable and it consumes, CFL bulb also consume less amount of power. Yes, less amount of power. But children, here this CFL bulb is not so eco-friendly than LED bulb. That's why CFL bulb is replaced by LED bulb. And today in our day-to-day life we use LED bulb because LED bulb is more eco-friendly. Sally Tiwari book दिखा रही है. It is also very eco-friendly. Which bulb? LED bulb, and not so CFL bulb. CFL bulb also its cost is I think the cost is same. More about cost is same, and both consume less power, but LED bulb is more eco-friendly than CFL bulb. That's why in our day-to-day life we use LED bulb.
अब आइए इलेक्ट्रिक करंट. व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? द फ्लो ऑफ चार्ज. इलेक्ट्रिक करंट है क्या? तो इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ये एनर्जी का फ्लो है, चार्ज का फ्लो है, कहाँ से? एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे. दैट इज इलेक्ट्रिक करंट. तो टू क्रिएट इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट करने के लिए सेल की जरूरत होती है, इलेक्ट्रिक वायर की जरूरत होती है, आपका जाकर के की जरूरत होती है, स्विच ऑन एंड ऑफ पोजीशन के लिए, दैट इज स्विच इज नेसेसरी. तो ऑल दीज थिंग्स आर नेसेसरी टू मेक एन इलेक्ट्रिक करंट. Then come on about electric current. Electric current always flows from, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, और पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आता है, फिर नेगेटिव टर्मिनल से होते हुए पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट हो जाता है. ओके, बट इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल एंड देन कम्स टू नेगेटिव टर्मिनल. सो एवरी अप्लायंसेस, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, all electrical appliances has two terminals, positive terminals and negative terminals. Okay, और क्यों होता है, कैसे होता है, ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे, not in class 6. अभी मैं बताने लगूं, then you have आपको बहुत confusion होगा. That's why you only know electrical appliances has two terminals, positive terminals and negative terminals. Negative terminal. Yes, there is an activity is given. Activity is given on page number 174. Yes, activity 4. इसमें दिया हुआ है, इस एक्टिविटी में हाउ, जैसे कि दो टीम है, कल मैं समझा चुकी थी, दो टीम है और एक बॉल है, तो एक बॉल को एक बच्चे दूसरे को, दूसरे तीसरे को, तीसरे चौथे को, इस प्रकार वो बॉल ट्रांसफर होता है. जब बॉल ट्रांसफर होता है, इट मीन्स देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. अगर बॉल ट्रांसफर हो रहा है, इट मीन्स देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. और जब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा है, तो बीच में से अगर हम किसी को हटा देते हैं, तो हमारा सर्किट जो होता है वो ब्रेक हो जाता है. तो सर्किट ब्रेक ना हो, इसीलिए हम क्या करते हैं, एक कंटिन्यूअस हम राउंड बनाते हैं. तो दिस एक्टिविटी इज रिलेटेड टू, activity 4 is related to how to make an electric circuit and how transfer of charge, how transfer of electrical energy takes place from one place to another place. कैसे ट्रांसफर होता है, आप एक्टिविटी 4 को पढ़ोगे अच्छे तरीके से. जैसे दो टीम बने हुए हैं, हाँ, एक टीम में 10 बच्चे हैं, दूसरे टीम में 10 बच्चे हैं. अब टीम 1 के नंबर 1 से स्टार्ट हुआ, तो एक बच्चा बॉल दूसरे को दिया, दूसरा तीसरे को, तीसरे चौथे को, पांचवें 6 7 8 9 10. अब क्या हुआ, जब वो 10 पे चला गया, फिर वो ट्रांसफर कर दिया दूसरे टीम के 11 को, 12 13 14 20 आ गया. अब 20 क्या करेगा, फिर देगा 1 को, तो क्या होगा, ये एक सर्किट बन रहा है. हाँ, तो इसी प्रकार ये जो चार्ज का ट्रांसफर होता है, मीन्स यहाँ पर जो बॉल है क्या है, चार्ज है. ये बॉल क्या है, चार्ज है. अब उस चार्ज का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है वन प्लेस टू अनदर प्लेस में, चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है. और उस चार्ज में से हम किसी एक को भी हटा दें, अगर उस चार्ज में से अगर हम एक किसी को हटा देते हैं, तो क्या होता है, हमारा सर्किट ब्रेक हो जाता है. और then there is no transfer of, it means there is no transfer of electrical energy or no transfer of charge. So there are two types of circuit, closed circuit and open circuit. Open circuit. Yes, there are two. Yes, ma'am, आपने कल बताया था. Yeah, two types of circuit, closed circuit and open circuit. Closed circuit जब करंट चारों तरफ से बंद है, हाँ, और हम क्या करते हैं, उसके दो छोर के बीच में हम लगा देते हैं एक प्रकार का स्विच, ताकि हम ऑन एंड ऑफ हम कर सके. हाँ, तो जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है किसी भी सर्किट में, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है किसी भी सर्किट में, इट मीन्स देयर इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इट मीन्स द सर्किट इज क्लोज्ड. लेकिन अगर सर्किट क्लोज नहीं है, ओपन है, मीन्स अगर हम उसमें से किसी भी, 1 मिनट गिव मी, बबुआ चार्जर दो,
चार्जर। अगर हम उस इलेक्ट्रिक सर्किट में से किसी को भी हम हटा देते हैं तो क्या होता है, हमारा सर्किट जो होता है वो ओपन हो जाता है, मीन्स करंट इज नॉट फ्लोइंग, करंट जो है वो फ्लो नहीं होता है और हमारा सर्किट जो होता है वो ओपन हो जाता है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ circuit, closed circuit and open circuit. Then come on about what is circuit. ये electric circuit है. The electric circuit means flow of electric circuit means flow of charge in a path. What is electric circuit? Electric circuit is the path in which electric current flows, जिससे होकर के इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है. सो इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड एज द पाथ इन विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो. जैसे हम लोग रोड पे चलते हैं तो रोड हमारा क्या एक प्रकार का पाथ है, उसी प्रकार इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए भी एक रास्ता चाहिए. एंड दैट पाथ एंड दैट वे इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक सर्किट. उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट. सो इलेक्ट्रिक सर्किट इज नथिंग बट इट इज द पाथ थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो. ऑल दिस थिंग्स मैं पढ़ा चुकी हूँ. टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए 3 थिंग्स आर एसेंशियल. आर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए. सेकेंड, अ पाथ मीन्स कनेक्टिंग वायर. जब तक कनेक्टिंग वायर नहीं होगा, हाउ वी कैन मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट, हम कैसे इलेक्ट्रिक सर्किट बना सकते हैं. एंड थर्ड इज अ स्विच फॉर ऑन एंड ऑफ. एंड थर्ड इज द स्विच टू मेक ऑन एंड ऑफ. तो ऑल दीज थिंग्स आई हैव एक्सप्लेन्ड अगेन, मैंने कल समझा दिया था. अब आइए, व्हाट इज इलेक्ट्रिक स्विच. अब इलेक्ट्रिक स्विच क्या है, पेज नंबर 176. देखिए इलेक्ट्रिक स्विच क्या है. इलेक्ट्रिक स्विच इज एन इम्पॉर्टेंट एंड इसेंशियल पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट. ये बहुत जरूरी है. अगर हम जब चाहें तब हम इलेक्ट्रिक करंट को स्टार्ट कर सकते हैं, जब चाहे तब हम इलेक्ट्रिक करंट को हम बंद कर सकते हैं. अभी जैसे ठंड का मौसम स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग फैन चलाना हमें अच्छा नहीं लगता, तो हम क्या करते हैं, इसका स्विच को ऑफ कर देते हैं ना, और जब जरूरत होती है तो उसकी स्विच को ऑन कर देते हैं. तो इलेक्ट्रिक स्विच है ये ऑन एंड ऑफ करने के लिए हमें क्या करता है, हेल्प करता है. बट चिल्ड्रन, the electric switches are of many types. कुछ भी देखोगे एकदम बटन टाइप का इलेक्ट्रिक स्विच होता है, किसी में बड़े टाइप के इलेक्ट्रिक स्विच होते हैं. सो इलेक्ट्रिक स्विच आर ऑफ डिफरेंट साइजेज एंड शेप्स. ये डिफरेंट साइजेज एंड शेप्स के जैसा होता है, डिफरेंट साइजेज एंड शेप्स होते हैं. एंड इट डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कि किस प्रकार के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में किस प्रकार का इलेक्ट्रिक स्विच चाहिए. इन एक्टिविटी 5 चिल्ड्रन, देखिए एक्टिविटी 5 में क्या है. देखिए एक मिनट चिल्ड्रन, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस देयर इज वन थिंग इज गिवन. डू यू नो the button type pieces on calculator, remote, computer, keyboard are also switches of different types. जैसे देखिए हमारे कैलकुलेटर में भी स्विच होते हैं, हमारे रिमोट में भी होते हैं, हमारे कंप्यूटर में भी हैं. In all these things different types of switches are present. Okay. So children, there are of different shapes and they are of different sizes. Then come on, next topic is that here activity 5. what is activity 5 क्या है. जैसे मैंने कल बोला था कि आप at present you are in home, आप घर में हो तो आराम से एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना करके और मुझे वीडियो ऑन करके दिखाओगे. जैसे आप क्लास ज्वाइन करते हो तो हाउ टू मेक इलेक्ट्रिक सर्किट, आप इलेक्ट्रिक सर्किट को कैसे बनाओगे. तो आपके घर में जो सबके घर में प्राय ये चीजें होती हैं,
आप एक छोटी सी बैटरी ले लोगे, मान सेल ले लोगे। बैटरी मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड एज बैटरी। तो आप एक सेल ले सकते हो, जैसे 8 वॉट का या 6 वॉट का छोटी सी सेल बैटरी आती है, सेल आती है। हाँ, उसके एक पोर्शन को आप कनेक्ट कर दोगे बल्ब से, और दूसरे पोर्शन को आप कनेक्ट करोगे उस बैटरी के दूसरे छोर से। तो क्या होगा, आपका Yes, ma'am. बल्ब, यस, तो आपका बल्ब जो है वो जलेगा। तो जलेगा इसका मतलब है कि आपने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया, लेकिन इसमें डी में जो आप दिखा रहे हो, इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट तो है, लेकिन इसमें आपका इलेक्ट्रिक स्विच नहीं है। तो आप इलेक्ट्रिक स्विच कैसे बनाओगे? आप मार्केट से कोई भी सामान नहीं खरीदोगे, आप इलेक्ट्रिक स्विच कैसे बनाओगे? हाउ टू मेक इलेक्ट्रिक स्विच। देखिए, हाउ टू मेक इलेक्ट्रिक स्विच, इसके लिए आप क्या करोगे, पहले जैसे आप एक छोटा सा एलईडी बल्ब ले लिया। हाँ, जैसे दीपावली वगैरह में जो बल्ब सजते हैं, छोटे छोटे बल्ब, Yes, ma'am. वो एक बल्ब ले Yes, लोगे। ma'am. 2 rupees में आते हैं। हाँ, वन बल्ब लोगे, उसके 2 पीसेस को आप एक सेल के एक किनारे से जोड़ोगे, दूसरे किनारे से आप क्या लोगे, आपके घर में पिन होगा, पेपर पिन या किसी प्रकार का पिन। हाँ, Yes, ma'am. है। आप पिन को एक जगह लगा दोगे, और मीन्स एक बोर्ड ले लोगे, कुछ भी बोर्ड, नहीं तो ऐसा बोर्ड जिसमें तुम पिन को अंदर डाल सको। हाँ, अगर आपके पास थर्मोकॉल का पीस है तो थर्मोकॉल का पीस, जैसे आप हर समय प्रोजेक्ट बनाते हो Okay, ma'am. तो घर में थर्मोकॉल का पीस भी बचा खुचा रहता है, तो उस बचे खुचे को आप क्या करोगे, आप ले लोगे ताकि उसके अंदर पिन जा सके। अब एक छोटा सा पिन ले लोगे, और पिन को एक बार तुम उसको पुश करोगे नीचे तो फिट हो जाएगा। उसके बाद उस वायर का एक तरफ आप कनेक्ट कर दोगे। हाँ, फिर एक दूसरा पिन लोगे, उसके बगल में आप उसको लगा दोगे, और उससे एक वायर को कनेक्ट करके बल्ब में लगा दोगे। जैसे एलईडी बल्ब का 2 छोर होगा, एक को सेल से कनेक्ट कर दिया, हाँ, पॉजिटिव टर्मिनल से, और दूसरे को बल्ब का दूसरे को आप ऐड कर दोगे उस पिन से। अब दोनों पिन के बीच में देखिए डिफरेंस है। जैसे 2 पिन हुए, जैसे 2 पिन हुआ, ये 2 पिन को आप ऐसे गाड़ दिया, ऐसे पुश कर दिया थर्मोकॉल पे, या किसी भी अगर आपके पास से, जैसे आपके घर में कोई सामान आता है तो वो मोटे वाले जो कूट होते हैं, उसका अगर पीसेस होगा तो उसमें भी वो काम हो सकता है। आप एक को ऐसे डाला, आप एक देखिए, आप एक छोर वायर के एक छोर को आप इससे ऐड कर दोगे, दूसरे आप बल्ब के एक छोर को इससे कनेक्ट कर दोगे, कनेक्ट कर दिया। अब क्या करोगे तुम, जब तक ये दोनों आपस में मिलेंगे नहीं, जब तक ये दोनों आपस में कनेक्ट नहीं होंगे, योर सर्किट इज नॉट क्लोज्ड, इट इज ओपन सर्किट। जब ये खुला हुआ है तब ये ओपन सर्किट है। अब इसको क्लोज बनाने के लिए अगर आपके घर में सेफ्टी पिन होगा, सेफ्टी पिन पतला सा, आप Yes, ma'am. है। हाँ, Yes, अगर ma'am. यस, या कोई भी पतला मेटेलिक सब्सटेंसेस होगा तो आप इससे इसको टच करा दो, या इसके अंदर सेफ्टी पिन को डाल दो और इससे टच करा दो, और वो मेटल का होना चाहिए, प्लास्टिक का नहीं। टच करा दिया तो सर्किट कंप्लीट हो गया। इट मींस इट इज अ क्लोज्ड सर्किट। कैसा सर्किट हो गया? यह सर्किट जो हो गया वह क्लोज सर्किट हो गया, Closed circuit. हाँ। अब यह पिन को आप इससे टच करके हटा दो तो कैसा सर्किट हो गया? यह हो गया Open circuit. ओपन सर्किट हो गया। तो आप बनाने की कोशिश करो क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट। तो की जो आप बना रहे हो, स्विच जो बना रहे हो, तो स्विच आप कोई भी सब्सटेंस आप मार्केट से नहीं खरीदोगे, अपने आप घर में खोजोगे कि कौन कौन सा सब्सटेंस है और कैसे हम इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट हम बना सकते हैं। दैट इज क्लोज सर्किट एंड ओपन सर्किट। आपके घर, जैसे आपके घर में अगर टॉर्च होगा तो टॉर्च के अंदर जो सेल यूज होता है आप उसका भी यूज कर सकते हो, और उसके यूज करके भी आप एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना सकते हो। और मार्केट से आप स्विच नहीं खरीदोगे, कोई बच्चा मार्केट से स्विच नहीं खरीदेगा, और सारे बच्चे कैसे खुद स्विच बनाएंगे और हमें बना के दिखाएंगे।
जैसे पिछले साल क्लास में बच्चे क्या किए थे, इलेक्ट्रिक सर्किट बना करके वो जो दोनों जो पिन मैंने इसे पुश किया किसी चीज में, एक छोटे से कंटेनर में वाटर ले लिया और वाटर में दोनों छोर के वायर को उसमें डाल दिया। तो वाटर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उसने क्या Yes, किया, ma'am. वाटर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसने सर्किट को क्लोज्ड कर दिया। तो ये भी अच्छा तरीका है। वी कैन ऑल्सो यूज वाटर टू मेक अ इलेक्ट्रिक स्विच। हम वाटर का उपयोग करके भी हम इलेक्ट्रिक स्विच बना सकते हैं। अब देखते हैं कि बिकॉज इट इज द ऑनलाइन क्लास में तो अब देखते हैं आप कितने बच्चे एक्टिव में इलेक्ट्रिक सर्किट बना करके मुझे दिखा सकते हो। जैसे मैं क्लास लूंगी तो आप हैंड रेज करके रखोगे और इसके बाद मैं देखूंगी कि आप इलेक्ट्रिक सर्किट आप बना रहे हो या नहीं बना रहे हो। जो बच्चे बना लिए हो वो अपना वीडियो ऑन करके दिखा देना, मैं देख लूंगी। ओके चिल्ड्रन, यू विल ट्राई। Okay, ma'am. अभी आप घर में हो, यू हैव एनफ टाइम to make a electric circuit. अब आइए चिल्ड्रन, पेज नंबर 178. Sometimes children we have an closed circuit. हमारे पास closed circuit है, all are well arranged, but sometimes bulb is not glowing. लेकिन but उसके बाद भी क्या होता है, बल्ब ग्लो नहीं होता है। हाँ, then bulb is not glowing. Sometimes circuit is closed but bulb is not glowing. Then what will be the reason? क्या रीजन हो सकता है कि बल्ब ग्लो नहीं किया? ओके, तो देर आर थ्री पॉसिबिलिटीज उसमें हो सकती है। Why bulb is not glowing? Given in, do you know, पेज नंबर 178. देखो, this would be due to the many reasons. This would due to the many reasons. First reason, connection may be loose or unclean. हो सकता है yes, हाँ, bulb may be fused. आपने सर्किट बना लिया, कैसा सर्किट बना लिया? That is closed circuit, but bulb is not glowing. What will be the reason? The reason is first, the connection may be loose or unclean. हो सकता है कि कनेक्शन हमारा लूज हो। सेकेंड पॉइंट, सेल में नॉट बी वर्किंग। हो सकता है मैंने जो सेल यूज किया है वो सेल वर्किंग में नहीं है। नहीं आ रही है। Its chemicals are used. हाँ, यस, इट्स केमिकल्स आर यूज्ड। कि मेरी वॉइस नहीं आ रही है? मैम आ रही है, क्लियर है। ओके, तो सेल इज नॉट वर्किंग, कनेक्शन मे बी लूज, एंड थर्ड इज बल्ब मे बी फ्यूज्ड। हो सकता है कि बल्ब फ्यूज्ड हो सकता है। सो दीज आर द थ्री पॉसिबिलिटीज। ये तीन कारण हो सकते हैं बल्ब के ग्लो नहीं करने का। Filament is broken. What again say? One more reason, the filament is broken. हाँ, the filament is broken, which again means a break in the circuit. Yes, उसमें जो फिलामेंट होता है वो कनेक्टेड होता है, उसमें एक प्रकार का वायर होता है और उसके ऊपर में वो फिलामेंट होता है। तो वो फिलामेंट जो है, ऊपर में जो फिलामेंट होता है, अगर वो ब्रेक हो जाएगा तो योर सर्किट इज नॉट क्लोज्ड, इट इज ओपन सर्किट हो जाएगा आपका। इट इज नॉट क्लोज सर्किट, इट इज ओपन सर्किट। अगर फिलामेंट कहीं से ब्रेक हो जाता है तो, बात समझ में आ गई? सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज। अब आइए, ओके चिल्ड्रन, देन कम ऑन। Okay, ma'am. यूज ऑफ सिंबल्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट। यूज ऑफ सिंबल्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट। सिंबल्स का क्या यूज है? ओके, तो सिंबल्स का यूज क्या है चिल्ड्रन? लिसन, जैसे समटाइम्स हम लोग क्या करते हैं। ओके चिल्ड्रन, वेरी गुड शैली तिवारी। देखिए, अगर आपको कहा जाए मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट, आप एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाओ, तो इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट ऑन द पेपर। अगर आपसे कहा जाए कि एक पेपर पर इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाओ, तो आप क्या करोगे? एक बल्ब का पिक्चर बनाओगे। ध्यान दो, आप एक बल्ब का पिक्चर बनाओगे, आप एक सेल का पिक्चर बनाओगे,
आप एक स्विच का पिक्चर बनाओगे, हाँ, आप एक स्विच का पिक्चर बनाओगे और फिर तब आप हमको इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम बना के दिखाओगे. बट चिल्ड्रन, इट इज नॉट बी एसेंशियल टू मेक डायग्राम एवरी टाइम. जरूरी नहीं है कि आप हर बार आप उस सेल का डायग्राम बनाओ, हर बार आप बल्ब का डायग्राम बनाओ, हाँ, हर बार आप स्विच का डायग्राम बनाओ, ये जरूरी नहीं है. सो सम सिंबल्स आर गिवन, इसीलिए कुछ सिंबल्स दिए गए हैं. हाउ टू मेक अ इलेक्ट्रिक सर्किट बाय यूजिंग सम सिंबल्स. कैसे हम इलेक्ट्रिक स्विच बनाएंगे सिंबल्स को यूज करके. ओके चिल्ड्रन, द फर्स्ट सेल. तो सेल के लिए क्या सिंबल है? तो देखिए, सेल के लिए सिंबल है एक, आपके पास सभी के पास बुक है? यस मैम. देखिए, एक बड़ा साइन, एक सपोज करो एक बड़ा साइन और एक छोटा साइन. ये बड़ा साइन है, छोटा साइन है, ठीक है. तो जो बड़ा साइन है इसको हम डिनोट करते हैं पॉजिटिव से, छोटा साइन है उसको डिनोट करते हैं हम नेगेटिव से, ठीक है. तो दिस इज द सिंबल ऑफ अ सेल. ये एक सेल का सिंबल है. तो कहीं भी हम अगर डायग्राम बनाएंगे तो इस स्मॉल सेल का एक सेल का डायग्राम हम इसी प्रकार बनाएंगे. एक बड़ा लाइन और एक छोटे लाइन को दिखाएंगे. ओके, एक बड़े लाइन और एक छोटे लाइन को दिखाएंगे हम सेल के डायग्राम में. दिस इज द सिंबल ऑफ सेल. कहीं भी हम अगर इस प्रकार के सिंबल का यूज करते हैं इसका मतलब है दिस इज सेल. नेक्स्ट इज बैटरी. बैटरी क्या है? तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड एज बैटरी. तो हम सेल को हम अगर कंबाइन करें तो उसको हम कहते हैं बैटरी. देखिए मैं बना के Combination of atom can made a cell. नो नॉट, मैं बता रही हूँ तुरंत. आप इस पेपर को देख पा रहे हो? Yes ma'am. Yes, ma'am. एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है. Yes ma'am. Yes, ma'am. और नहीं Yes, तो ma'am. आपके पास बुक है, आप बुक भी देखिए. एक पॉजिटिव, बड़ा वाला साइन को पॉजिटिव कहते हैं, छोटे वाले साइन को नेगेटिव कहते हैं. Yes, ma'am. ठीक है. अब आइए बैटरी. तो हाँ, यस, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. वेरी गुड, वेरी गुड. इट इज कॉल्ड एज बैटरी. इसको हम कहते हैं बैटरी. अभी मैं फिर से बना रही हूँ. पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. जरूरी नहीं है कि दो ही सेल. कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज बैटरी. आपके बुक में दो सेल दिखाया गया है. आपके बुक में दो सेल दिखाया गया है. देखिए, एक पॉजिटिव, Which combination can make cell? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज बैटरी. आपके बुक में दो सेल है, 1 2. मैंने यहाँ पे 3 सेल ले लिया, नो प्रॉब्लम. जब हम क्या डिफाइन करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज बैटरी. तो मैंने सभी सेल, 3 सेल को कंबाइन कर दिया तो बन गया बैटरी. लेकिन पहले बड़ा साइन छोटा साइन, फिर बड़ा साइन छोटा साइन, फिर बड़ा साइन छोटा साइन. Ma'am, which combination can make cell? Yes, combination of cell is called as battery. अनुष्का बात से any problem? Yes ma'am. क्या अगेन से? Ma'am, which combinations can make cell? Which combination can make cell? Battery. Yeah, मिट्टी का घर. yes, the combination of cells is called as battery. Yes ma'am. When we arranged combine cells, then it becomes battery. जैसे आपके इन्वर्टर में क्या है, बहुत सारे सेल हैं. इन्वर्टर के में जो आपका बैटरी लगा हुआ है उसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं और सबको कंबाइन. मैम वो पूछ रही है कि बैटरी सेल के कॉम्बिनेशन से बनता है, तो सेल किसके कॉम्बिनेशन से बनता है? ओ अच्छा, सेल किसके कॉम्बिनेशन से बनता है, दिस इज योर क्वेश्चन. ओके,
देखिए, सेल कॉम्बिनेशन से नहीं बनता है। सेल कैसे बनता है? सेल बनाने के लिए हम एक कंटेनर लेते हैं, उसके अंदर केमिकल्स डालते हैं, और केमिकल्स डालने के बाद हम उसमें ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल क्रिएट हो। मतलब क्योंकि करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो सेल को बनाने के लिए, एक सेल को बनाने के लिए हम कुछ केमिकल्स लेते हैं, उसमें वायर लगाते हैं, तब एक सेल बनता है। उसका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल फिर उसमें क्रिएट करना पड़ता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके हम पॉजिटिव और नेगेटिव उसमें टर्मिनल बनाते हैं। जनरली जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहां पे हाई पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और जहां पे नेगेटिव टर्मिनल है वहां पे लो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। और हम केवल साइन देते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव का, ये बताता है कि क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, और पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही करंट का फ्लो होता है एक जगह से दूसरी जगह। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो तो हमारा करंट का फ्लो भी नहीं होगा। एक चीज ऐसे समझो। अच्छा, पहले सिंबल समझ लो, उसके बाद मैं समझाती हूँ। थर्ड, अनुष्का बात समझ में आ गया? Yes, ma'am. ओके ओके चिल्ड्रन, कनेक्टिंग वायर, the symbol of connecting wire is this. Ma'am, this is connecting wire. This, yes, the symbol of connecting wire. Next is bulb. हाँ, नेक्स्ट इज बल्ब। अब हम बार बार बल्ब का पिक्चर नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे, बल्ब के सिंबल को दिखाने के लिए मैं बता देती हूँ हाउ टू मेक द सिंबल ऑफ बल्ब। हम बल्ब का Ma'am, सिंबल, this is symbol of bulb. यस ये, यस, वेरी गुड शैली तिवारी, अनुष्का वत्स, आप लोगों ने बनाया बल्ब का सिंबल, वेरी गुड। दिस इज द सिंबल ऑफ बल्ब। तो जब भी हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे हम बल्ब का डायग्राम नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे, ये सिंबल दिखाएंगे, तो आप समझ जाओगे कि क्या है, दिस इज द डायग्राम ऑफ बल्ब, मतलब वो सर्किट में बल्ब है। समझ में आया? ओके, Yes, ma'am. इज इलेक्ट्रिक स्विच, ऑफ एंड ऑन पोजीशन। अब इलेक्ट्रिक स्विच का मैं डायग्राम बनाने जा रही हूँ। ओके, इलेक्ट्रिक स्विच, जब आप इलेक्ट्रिक स्विच का डायग्राम बनाओगे, 1 मिनट चिल्ड्रन। ओके चिल्ड्रन, Yes, ma'am, this is diagram I have made. यस, ऑन एंड ऑफ। जब आपका ऑफ होता है तो बीच में गैप है, ओके जब आपका ऑन होता है तो गैप नहीं है, मतलब दिस इज द डायग्राम ऑफ सिंबल, यस, सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक स्विच, ऑफ पोजीशन एंड ऑन पोजीशन। तो ऑन पोजीशन मीन्स Yes, दोनों दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे, ऑफ पोजीशन मतलब उसमें ब्रेक रहेगा। समझ में आ गई बात? समझ Yes, में? ma'am. ओके, वेरी गुड चिल्ड्रन, आज आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो, वेरी गुड। अब आइए, 1 मिनट चिल्ड्रन। So these are the symbols of, that is different electrical appliances या different things used to make the electric circuit. जैसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं, we use different types of symbols, that is cell, battery, connecting wires, bulb and electric switch. अब आइए, this is all about our in this chapter, that is what is electric current, what is dry cell, primary cell, secondary cell, connecting wire. Next is an use of symbols in electric circuit. How we can use the symbols in an electric circuit. Just as children, before starting conductor and insulator, I again want to say something. देखिए, सपोज दिस इज द पेपर, ये पेपर है, या आपके घर में अगर कोई प्लास्टिक का पाइप होगा, ध्यान दो, आपके घर में अगर कोई प्लास्टिक का पाइप होगा तो पाइप में आप इधर से पानी डालो, ध्यान दो,
This is pipe.